हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है, देन विल गो अहेड। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है इस चैप्टर में। देन आफ्टर वी हैव सीन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। इन दैट वन, place. It is divided into three parts. Number one is place, number two is time, number three is competition. Place have divided again into three parts: local, national, international. Then time divided into four parts: very short period, then short period, long period, and very long period. Then competition divided into two parts: perfect competition, that is imaginary market. In that market everything is perfect. Okay, and after that imperfect market, in that we have seen about monopoly, oligopoly, and monopolistic competition. Okay, तो चलो let's start. Okay, this all this thing we have discussed already in our lecture. Okay, in previous video we have discussed about meaning of monopoly and definition. Then we have discussed, okay, so meaning and definition. Then after we have discussed about features of monopoly. Number one is single seller, number two is no close substitute, then next barrier to entry, then complete control over the market supply, price maker, price discrimination, no distinction between firms and industry. Then types of market we have discussed. Okay, so today we will discuss about, okay, already we have done about market types of monopoly, that is private monopoly, public monopoly, legal monopoly, then natural monopoly, then simple monopoly, and discriminating voluntarily. Okay, today we are going to discuss about oligopoly. ठीक है, what is oligopoly? Oligopoly is a term. The term oligopoly is derived from the Greek word that is oligo, which means few, and poly means seller. So in this market you have always seen the few seller, okay, and few buyer. So in this, it is that market where there are few firms in the market producer either a homogeneous product or differentiate product. For example, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, सीमेंट कंपनीज. तो यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं आइदर वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का दिया हुआ है एग्जांपल. मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, तो ये सारे जो कंपनीज़ है वो क्या है, होमोजीनियस, यानी कि इन सबका एक ही ये है कि वो क्या करते हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बनाते हैं. जैसे और सारी कंपनीज जो है वो नेटवर्क ही प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो आइदर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होगा. ओके, तो इसके कुछ फीचर्स देखते हैं. नंबर वन फीचर इज फ्यू फर्म और सेलर. So under oligopoly market there are few firms or seller. These firms dominate the market and enjoy the considerable control over the price of product. अभी देखो आज का टाइम में जितने भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना रिचार्ज जो है वो, इंटरनेट कंपनीज़ हैं जिन्होंने रिचार्ज अपना इतना हाई कर दिया है. पहले एक टाइम था कि 150 में आपको अच्छा खासा मिल जाता था, जिससे आप इंटरनेट भी यूज़ कर पाए थे, कॉल भी कर लिया करते थे, या कॉलिंग के लिए भी आप सिंपल से रिचार्ज कर सकते थे. बट राइट ना ऐसी कोई बेनिफिट ही नहीं है. आपको अगर चाहिए तो आप 250 का रिचार्ज करो और 1.5 GB लो, या फिर 200 का रिचार्ज करो. तो मतलब इतना जो गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, और वो पूरे मार्केट को ऑक्यूपाइड करके डोमिनेट करते हैं मार्केट को, और पूरा प्राइस का जो कंट्रोल होता है वो उनके अंडर में ही होता है. इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस क्यों है, बिकॉज द सेलर हैज़ टू कॉन्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय द competition firm, since there are few sellers in the market. If firm makes the change in the price
all other firms in the industry also would change the same price in the competition. मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जियो ने एक साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने एक स्ट्रैटेजी लगाई थी कि हम 200 का 199 का रिचार्ज करने के बाद हम खाली 1000 मिनट देंगे कस्टमर को बात करने के लिए। अगर उससे एक्सेस उससे बात करनी है तो वो क्या करेगा, वो एडिशनल रिचार्ज करवाएगा। पर ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा दिन तक नहीं कंटिन्यू हुई। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जियो के, वो क्या होने लगे, वो शिफ्ट होने लगे। किस में शिफ्ट होने लगे? वो शिफ्ट होने लगे दूसरी कंपनीज़ में। फॉर एग्जांपल जो जियो का कार्ड यूज़ कर रहा था वो वोडाफोन में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि 199 में है जियो की कंपनी, एयरटेल और वोडाफोन की कंपनी 1.5 GB डेटा और सारी चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। और वहीं जियो जो है वो 199 में खाली कॉलिंग दे रहा था 1000 और बाकी चीज़ें। तो इन दैट केस क्या होता है, अगर एक कंपनी ने प्राइस चेंज किया, दूसरी कंपनी को उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। अगर एक ने भी प्राइस में कुछ यहाँ वहाँ छेड़छाड़ की तो उसका इम्पैक्ट दूसरी होता है, या प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। ठीक है, तो ये तो था इंटरडिपेंडेंस। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट हमारा एडवर्टाइजिंग। देखो एडवर्टाइजमेंट की भी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। तो एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। अ फर्म under oligopoly can start aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing large part of market। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कभी आपने फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा, तो उस फेयर एंड लवली में इस तरीके से ऐड को रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर आपको इतने दिनों में आप फेयर दिखने लगोगे, या आपने कभी स्केल देखा होगा क्या, स्केल यानी कि उनका 1 से 7 का 6 का स्केल होता है। आप इतने टाइम में इतना हो जाओगे, इतने टाइम में इतना हो जाओगे। तो वो इस तरीके के चेंजेस जो है वो दिखाते हैं, किसको, कस्टमर को दिखाते हैं, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए ट्राई करें। तो जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर व्हाट, फॉर एनलार्ज, फॉर प्रॉफिट फॉर अ इंक्रीज प्रॉफिट फॉर अ कंपनी। नेक्स्ट आता है एंट्री बैरियर। यहाँ पे एंट्री बैरियर किस तरह से होते हैं, बिकॉज द फर्म कैन ईजिली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट्स, बट हैज़ टू फेस सर्टन एंट्री बैरियर सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस पैटर्न्स। अगर आपको फिर से मार्केट में एंट्री करनी है तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिर से करना पड़ता है, और उस प्रोसीजर को बहुत सारा टाइम जाता है, जिसकी वजह से एंट्री बैरियर, या एंट्री तो मतलब एग्जिट तो हो सकता है जब वो चाहे, लेकिन एंट्री के टाइम पे बहुत सारे सिचुएशन से टैकल करनी पड़ती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग्स द फर्म इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। So firms may be small while other may be bigger। कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं जो हाई स्केल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे समहाउ यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, कभी लॉस हो गया तो मे बी प्रॉफिट भी हो सकता है, या प्रॉफिट हुआ तो ज़रूरी नहीं कि हर साल प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपके ही टर्म में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सब लाइन में लगे हैं और सब काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका कमोडिटी अच्छा होगा तो उसका प्रॉफिट होगा। आपका कमोडिटी ज़रूरी नहीं कि आज अगर मार्केट में ट्रेंड कर रहा है तो अगले आने वाले 10 साल में भी ट्रेंड करे। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेंड करना बंद कर दे, उसका फैशन चला जाए। तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। सो देयर इज़ अ कंसिडरेबल एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू different behavior pattern. So rivals may join hand and cooperate or may try to fight each other. I hope आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने हर टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओ। तो यहाँ पर आज की वीडियो यहीं तक करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।